Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So here is a video of my term paper actually, which is terminologies used on Instagram in business context. I will tell you about the terminologies which are used on Instagram by applying the Fairclough model. The application of Fairclough model on my term paper. So the abstract is that as we all know that social media platforms are being widely used in younger generation. लाइक सोशल मीडिया काफ़ी जो यंग जनरेशन होती है वो यूज़ करती है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आती है सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक एंड एवरीथिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द यंगर जनरेशन। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है एंड दैट इज़ इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम किस लिए यूज़ होती है? Because most of the businesses or brands upload the post on Instagram because they know that the platform which is being used by the younger generation is the Instagram. They upload videos and posts and vlogging etc. on Instagram. That's why businesses also come on the seek the opportunity and come on Instagram to upload and launch the new products which are they are going to introduce with the audience. And that's why they use terminologies and in catchy captions to attract the audience. Like what is the purpose behind those posts and catchy captions is that the audience should attract these captions and terminologies and come on the market to buy the products which they are launching. So the introduction is that first thing first, like we have to define the definition of discourse. What is discourse? Discourse is the written or spoken communication between people, the speaker and the listener. And discourse and analysis is the analysis of the language which is being spoken by the writer and the reader, etc. And media discourse, Instagram falls under the category of media discourse. Media discourse is that where the information is being shared by the media, and we know that we know that Instagram is the media, so it will fall under the category of media discourse. So I have just defined that businesses on Instagram use different terminologies. Why they use terminologies? To attract the audience. दिस इज़ द लिटरेचर रिव्यू एज आपको पता चल गया होगा कि ये लिटरेचर रिव्यू में साइटेशंस दी होती हैं. दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो गिवन द साइटेशंस टू रिकॉग्नाइज द ऑथर और द राइटर विच हैव गिवन दिस definition or the term. The first thing is that a highly interactive social media platform which is Instagram. Instagram is a highly interactive social media platform. अभी भी हमें पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है. It is being widely used by business owners and other people. अभी मैंने पीछे आपको बात बताई है कि business owners यूज़ करते हैं और other people कौन होते हैं? जो younger generation होती है, like we, you and many other people surrounding you. Offers a unique way to post pictures and videos with captions and hashtags. One most important thing is that they use hashtags. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज़ अ परफ्यूम Dior, इट इज़ अ ब्रांडेड परफ्यूम नेम. अगर मैं हैशटैग्स लगा के सर्च बार में लिखूंगी Dior तो उसकी और भी काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ दैट परफ्यूम, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड सीन, लाइक बिहाइंड द सीन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट परफ्यूम. तो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा. what it is used for, it helps us gain deep insights about social, cultural and environmental issues. क्या issues होते हैं उस for example हमारी society में क्या issue है. for example if the winter season is coming up तो brands क्या करेंगे, विंटर क्लॉथिंग स्टार्ट कर देंगे और साथ कैप्शंस यूज़ करेंगे लाइक यू हैव टू स्टे वार्म एंड कोजी इन दिस वेदर. सो द टर्म्स यूज्ड हियर आर कोजी वेदर, स्टे वार्म एटसेट्रा. कल्चर को भी फॉलो करते हुए यूज़ करेंगे. हमारी कल्चर की क्या ड्रेसिंग है, सोसाइटी में किस टाइप की ड्रेस चल रही होती है, तो उसको लेकर अपने ब्रांड्स में वैसी ही ड्रेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे. ज्वेलरी भी हो सकती है, लाइक एनी अदर थिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द पीपल, not the society. Business posts are public which means they are visible to anyone using Instagram. अब इसमें बात यह है कि जो Instagram पे जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं ताकि वो सबको नज़र आए. प्राइवेट नहीं होते. प्राइवेट तो दूसरे अकाउंट्स होते हैं जो पर्सनल होते हैं. वी आर द ऑडियंस. हमारे अकाउंट्स प्राइवेट होंगे unless or until we are involved in any business, any kind of business or
फॉर वी आर डूइंग एनी एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हैशटैग्स गेन पॉपुलैरिटी ओवरनाइट। अगर हम कोई स्पेसिफिक हैशटैग यूज़ करेंगे, ट्विटर को ही ले ले, वहाँ पर अगर कोई हैशटैग को हम आगे लेकर जाना चाहेंगे तो बहुत सारे लोग उसको रीट्वीट करेंगे। इस वजह से हैशटैग जो है वो ओवरनाइट पॉपुलैरिटी गेन करता है। और ये हैशटैग्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कैप्शंस, कैची कैप्शंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू फाइंड पीपल लाइक देमसेल्व्स। ब्रांड्स की ज़रूरत होगी, वो एक दूसरे के आइडियाज़ को देखेंगे, लाइक हाउ दे आर अट्रैक्टिंग द ऑडियंस, हाउ दे आर स्प्रेडिंग द मैसेज टू द ऑडियंस। द नेक्स्ट थिंग इज दैट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। वही बात जो भी मैंने की है, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी तो वो पोस्ट खोलेंगे, वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद वो उस चीज़ को खोलेंगे जिसके लिए वो आए थे। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल विच इज़ नॉर्मन फेयरक्लफ मॉडल। नॉर्मन फेयरक्लफ मॉडल के जरिए से आई विल analyze the terminologies which are used on Instagram. तो first thing is that description में हम क्या करते हैं, linguistic tools और vocabulary को देखते हैं. For example, what is the sentence structure और उसमें क्या term use हुई है, what is the literary device used by them. For example, if there is any imagery, if there is any irony, satire और hyperbole. vocabulary simple vocabulary है या सॉफ्ट वोकेबलरी है या बिल्कुल डिफ़िकल्ट वोकेबलरी, इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशन का असल मतलब होता है लाइक how the audience is taking the meaning of that caption, of that hashtag, of that terminology which is used by on the post. लेकिन इसका जो फेयरक्लफ मॉडल में मतलब होता है वो उसका क्या मतलब होता है, who is the discourse producer. As we all know that discourse producer is the Instagram user और and who is the consumer. कंज्यूमर वो जो प्रोडक्ट को हम बाय करता है, जो मार्केट में जाता है और अपने रिव्यूज़ वगैरह देता है. इसका मतलब ये कि who and why. फिर आ जाता है एक्सप्लेनेशन में हम सोसाइटी को देखकर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं लाइक what is the hidden ideology or agenda behind producing these posts, behind producing these terminologies and introducing the captions, the catchy captions to the audience. उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या उनका हिडन एजेंडा है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका असल में मतलब क्या है कि वो हमसे क्या चाहते हैं. लाइक मैं आपको अभी बताती हूँ, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करें, मार्केट में जाएं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करवाना चाहते हैं ताकि ऑडियंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए और वो ख़रीदे. नाउ हियर इज़ द डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर. इसमें मैंने 4 टर्मिनोलॉजीज ली हैं. फॉर एग्जांपल 4 मैंने टेक्स्ट लिए हैं, 1 2 3 एंड दैट 1 इज़ 4. नो, दिस 1 इज़ 3rd one. अच्छा, यू गॉट प्लेड अ लॉट बट द एल्गोरिथम प्लेड यू द मोस्ट. अब एल्गोरिथम तो सबको ही पता होगा कि अब इसमें क्या मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है, एल्गोरिथम जो है एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ हुई है. ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये पोस्ट की है कि एल्गोरिथम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी डायोर परफ्यूम की. अब ऑडियंस क्या है, ऑडियंस लेके जाएगी परफ्यूम को अपने घर में, तो अगर उनको परफ्यूम पसंद आई वो रिव्यूज़ देंगे और अगर रिव्यूज़ देंगे तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट ऊपर चला जाएगा और एल्गोरिथम की वजह से सारी जो पोस्ट उस डायोर परफ्यूम की हैं वो सारी ऊपर आ जाएंगी और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगी. इस वजह से जो एल्गोरिथम है दैट इज़ प्लेइंग विद अस, हमसे खेल रहा है ताकि ऑडियंस जो है वो परफ्यूम ले और वो ब्रांड और वो बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश करें. अब इसमें जो टर्म यूज़ हुई है दैट इज़ एल्गोरिथम. इसको हम नाउन भी कह सकते हैं. प्लेड अलॉट, फॉर एग्जाम्पल प्लेड मीन वर्ब. यहाँ पर यूज हुआ है. इंटरप्रिटेशन, इसमें हु इज़ द प्रोड्यूसर, लाइक डिस्कोर्स प्रोड्यूसर इंस्टाग्राम अकाउंट है दैट इज़ एनोनिमस, यहाँ पर मैंने बताया नहीं है. एंड डिस्कोर्स कंज्यूमर कौन है, वी आर द डिस्कोर्स कंज्यूमर हु इज़ कमेंटिंग अंडर द पोस्ट, लाइक हु इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कैप्शन एज वेल. और जो एक्सप्लेनेशन में आएगा उसमें यही कि they are trying us to buy the product which is being launched by them. और जो नेक्स्ट टेक्स्ट है दैट इज ग्लॉसी मेटालिक लुक फ्रॉम मॉस्चिनो जीन्स. अब इसमें MO5 है ना, ये इसका मतलब है MOS, मॉस्चिनो जीन्स जस्ट लैंडेड. और इसमें क्या यूज़ किया इन्होंने, ग्लॉसी मेटालिक लुक्स. व्हाट इज ग्लॉसी मेटालिक लुक्स, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुई है. एंड शाइन ब्राइट एट नाइट, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुई है. और मॉस्चिनो जीन्स जो है इनका ब्रांड नेम है.
इसमें डिस्क्रिप्शन तो मैंने अब बता दी है। इंटरप्रिटेशन इसकी यही होगी, इट इज़ अ ब्रांड नेम, इट इज़ अ लाइक बिजनेस अकाउंट इज़ लॉन्चिंग अ परफ्यूम, बिजनेस अकाउंट इज़ लॉन्चिंग अ परफ्यूम, जो कि उन्हीं को ही फ़ायदा देगा, डिस्कोर्स प्रोड्यूसर को फ़ायदा देगा, डिस्कोर्स कंज्यूमर को भी फ़ायदा देगा। डिस्कोर्स कंज्यूमर को कैसे फ़ायदा देगा, लाइक अगर हम यूज़ करेंगे तो वो परफ्यूम हमसे अच्छी सी आएगी, लोग हमसे पूछेंगे लाइक विच परफ्यूम आर, विच ब्रांड आर यू यूजिंग, तो इसमें डिस्क्रिप्शन का ये आ जाएगा और इंटरप्रिटेशन का ये आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर क्या आएगा, लाइक सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी वांट दिस टू हैपन, क्योंकि सोसाइटी ऐसे होती है ना कि अगर एक बंदा परफ्यूम यूज़ कर रहा है तो वो कहेंगे ओ अगर इसने परफ्यूम यूज़ किया तो मैं भी यूज़ करूँगा, तो सोसाइटल इम्पैक्ट ऐसे आ जाता है। तो वो एक बंदा यूज़ करेगा परफ्यूम, फिर दूसरा बंदा भी यूज़ करेगा, उससे इन्फ्लुएंस होके फिर इस तरह स्प्रेड होता जाएगा और इसी वजह से इनका बिजनेस भी फ्लरिश करता रह जाएगा। और जो ब्रांड ये जो नेक्स्ट है, दिस इज़ द थर्ड वन, इनसाइड द ड्रीम बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ हाई परफ्यूमरी क्रिएशन। ये जो है ये जीन्स की प्रमोशन हो रही थी, लाइक न्यू जीन्स लॉन्च हुई है, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जीन्स पहनेंगे तो आप शाइन करेंगे, वो भी रात के अंधेरे में, रात में भी आप शाइन करेंगे, दिन में भी आप शाइन करेंगे, एंड एलिवेट एवरी डे, अपना हर दिन खूबसूरत बनाएं। और ये वाला है ये जो एक परफ्यूम इंट्रोड्यूस हो रही है, ये उसके बारे में बात हो रही है, लाइक लॉर दी जेडोर। अब फ्रेंच में तो ऐसे नहीं बोलते, आई हैव जस्ट ट्रांसक्राइब्ड इन इंग्लिश। ये एक परफ्यूम का नेम है। और एसोनेंस यहाँ पर क्या होता है, एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ द वॉवल साउंड्स। यहाँ पर कौन सी वॉवल साउंड्स यूज हो रही हैं, ई, सीक्रेट्स में ई, बिहाइंड में ई, और द में ई, क्वेस्ट में ई, लाइक एवरी ई साउंड इज बीइंग रिपीटेड। तो ये इसको हम बोलते हैं। द नेक्स्ट फोर्थ टेक्स्ट विच इज़ यूज बाय मी इज, जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ये क्या है, ये एक इंस्टाग्राम बिजनेस इज द फोर्थ टेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया है अपने टर्म पेपर में। उसमें ये क्या है कि ये एक इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट है, लाइक ऑफिशियल इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। यहाँ पर बिजनेसेस को बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं कि किस तरह आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। और उन्होंने भी एक डिस्कोर्स यूज़ किया है अपनी पोस्ट में, आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। यहाँ पर इन्होंने आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड यूज़ किया है, मतलब कि दे आर यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ये इसलिए यूज़ होते हैं टू इन्वॉल्व द ऑडियंस, लाइक यू आर वन ऑफ अस, आप हम में से ये हैं, हम आपकी केयर करते हैं, बिल्कुल डिटैच नहीं कर रहे, इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड, इसकी अब एक और क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर तो हमें पता होता है बट ऐसे ही एज अ फॉर्मेलिटी पूछ रहे होते हैं, नॉट टू गेन एनी इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन की तरह यूज नहीं होता। द नेक्स्ट थिंग इन डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या यूज है, हियर आर 6 एसेंशियल आइडियाज एंड टूल्स। अब ये न्यूमेरिकल इनूमरेशन यूज हुई हैं, न्यूमेरिकल इनूमरेशन फॉर एग्जांपल जिसमें नंबर भी आ जाते हैं और जिसमें डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है। और ये जितने भी वर्ड्स इसमें डिस्क्रिप्शन में यूज हुए हैं, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दोस्त, ये आपको वैसे भी पढ़ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में मतलब क्या है, डिस्कोर्स प्रोड्यूसर, हु इज द डिस्कोर्स प्रोड्यूसर, इंस्टाग्राम यूजर, जो यहाँ पर इंस्टाग्राम यूजर जो है वो डिस्कोर्स प्रोड्यूसर है, और कंज्यूमर जो है वो ऑडियंस है जो कमेंट कर रही है, और जो बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो इनसे आइडियाज़ लेंगे, वो डिस्कोर्स कंज्यूमर्स हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगा, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है कि इसको देखकर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट को फॉलो करेंगे लोग, क्योंकि उनको टिप्स मिल रही हैं, तो इसी वजह से वो उन्हीं का ही फ़ायदा चाह रहे हैं ताकि आप एक दूसरे का फ़ायदा होगा। इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। एक बंदा फ़ायदा ले रहा है तो दूसरे को भी इससे फ़ायदा होगा। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग इट राइट, लेकिन आई थिंक आपको समझ तो आ गई होगी ना कि इनको ये फ़ायदा होगा कि इनके बिजनेस के फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, और अगर कमेंट्स इनके हुए तो और ज़्यादा इनको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू लुक इन द नेक्स्ट कमिंग पोस्ट। और जो ऑडियंस कमेंट कर रही है उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको न्यू आइडियाज़ मिल जाएंगे, हाउ टू फ्लरिश देयर बिजनेस, हाउ टू अट्रैक्ट और रीच द ऑडियंस। एंड इन कंक्लूजन में क्या है कि वो जो सारी बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हिडन आइडियोलॉजी उसकी क्या है,
हिडन आइडियोलॉजी इनकी ये है कि दे वांट अस टू बाय द प्रोडक्ट्स व्हिच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय देम। अपने अकाउंट को फ्लरिश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को फ्लरिश करना चाहते हैं, और ये कि शेपिंग ऑडियंस परसेप्शन एंड कंपेल देम टू विजिट मार्केट। अब फॉर एग्जांपल मैंने एल्गोरिथम की एग्जांपल दी थी, उससे क्या होता है कि हम ऑडियंस की परसेप्शन चेंज हो जाती है। अगर हमारे सामने पोस्ट आएगी नहीं तो हमारी परसेप्शन कैसे बनेगी? एक पोस्ट अगर हमारे सामने बार बार आ रही है तो हमारी उसके सामने हमारी उसके बारे में परसेप्शन क्या बनेगी? लाइक ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी जाकर ख़रीदूँ। तो इसमें एल्गोरिथम का बहुत ज़्यादा रोल है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट टेक्स्ट दैट एल्गोरिथम इज़ यू गॉट प्लेड अ लॉट बट एल्गोरिथम प्लेड यू द मोस्ट। और थर्ड कंक्लूजन की बात यह, दिस इज द ओनली अचीव थ्रू यूजिंग हैशटैग। और ये हैशटैग्स, टर्मिनोलॉजीज और कैप्शंस की मदद से ही यूज़ हो जाता है। कैची कैप्शंस हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस, तो ऑडियंस और अट्रैक्ट होगी कि हमारे बारे में बात हो रही है, अपने बारे में बात नहीं कर रहे। हैशटैग्स ऐसे यूज़ होंगे कि अपने ब्रांड के बारे में हैशटैग यूज़ करें ताकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपको रीच करे और आपको सर्च करे और इजीली आपको अवेल कर सके। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।